we have discussed about the development of face, and during our discussion for the repetition, एक recall करने के लिए मैं आपको repeat कर रहा हूँ ये चीज के उसमें हमने देखा था that we have seen that there is a frontonasal process and two maxillary process and two mandibular process, and during the development there is development of a nasal pit, and around the nasal pit there is development of a medial process and a lateral nasal process. So medial process as grows is down, grows is come closer, fuses with the frontonasal process, and the lateral nasal prominences they are making the lateral nasal wall. तो उसमें फिर हमने देखा था कि फिर ये मैक्सिलरी प्रोसेसेस हैं टू मैक्सिल दे आर कमिंग क्लोजर टुगेदर, और दरमियान में ये वाला एक पार्ट जो होता है ये फिल्थ्रम और लिप का सेंट्रल अपर लिप का सेंट्रल पार्ट वो इससे इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट से बनता है। तो प्रीवियसली हम ये देख चुके हैं, और फिर ये होता है कि फिर ये कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। मैंडिबुलर प्रोमिनेंस it take parts from the pharyngeal arch one. Actually, maxillary and mandibular prominences they are both related with the first pharyngeal arch, and but the mandibular process more developed with the pharyngeal arches, and maxillary process is central to it, is uh, cranial to it develops. ये हम पढ़ चुके थे। अब ये है कि लिप्स के बारे में we have seen that the development of lips में lower lip from the mandibular process, the two sides they will come closer together and they will fuse in the midline, and lower margin of the stomodium mouth cavity जो बनती है इसका जो oral orifice बनता है, fused mandibular process give rise to lower lip and lower jaw. But the upper lip, each maxillary process, it grows medially and fuses with the first with lateral nasal prominences, then the medial, and it will form the upper lip. But इसमें ये है कि वो intermaxillary segment will develop, will form the philtrum of the upper lip and the four incisors, and also the primary palate that we will see later. ये एक additional slide थी to see the development of the cheeks. So after lower lip develop कर जाता है, stomodium broad हो जाता है, and bounded by maxillary process, below by mandibular processes, and undergo progressive fusion with each other to form cheeks. ये जो processes हैं maxillary processes, जब ये fuse करते हैं तो then they will form the cheeks. अब इसमें ये आपके ज़हन में जब आप पढ़ेंगे ग्रॉस एनाटॉमी तो उसमें देखेंगे चीक्स आर मेनली फॉर्म बाय द zygomatic बोन, तो वो फिर ये मैक्सिलरी प्रोसेस से ही आते हैं। फिर ये होता है कि लाइन ऑफ फ्यूजन नेजो ऑप्टिक आउटफ्लो नेजो लैक्रिमल डक्ट, ये जो लाइन ऑफ फ्यूजन बनती है क्योंकि लैटरली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डेवलप हो रही है आई, तो इसके साथ ये जो लाइन डेवलप है जहाँ पे लैटरल नेजल प्रोमिनेंस और ये मैक्सिलरी प्रोसेस है ये फ्यूज कर रहे हैं, तो ये लेजो लैक्रिमल सल्कस बनता है। इन दिस in adults you will see the gross anatomy that this is the site from where the nasolacrimal duct open into the inferior meatus from the lacrimal fossa that runs downward into the nasal cavity. तो वो फिर nasolacrimal duct जो open करती है, developmentally this is the site of the development of nasolacrimal duct, which is first our naso-optic furrow, then nasolacrimal sulcus, and then the nasolacrimal duct. This is how the tears or the fluid in the eye comes to the nose developmentally. Now today we have to discuss about the nasal cavities, how the nasal cavities they are formed. Fourth week में एंड हुआ bilateral thickening of the ectoderm of the nasal placoid primordia बना nasal epithelium का, और फिर ये जो है infralateral part of the frontal nasal process उसके develop हो रहा है। फिर ये कि अब
आगे हम देखते हैं mesenchyme जो है, mesenchyme the margin of the plaque will proliferate, producing horseshoe shaped elevation mesenlateral nasal prominences. ये जो हम lateral wall है, ये तो हम देख चुके हैं कि वो कैसे डेवलप होती है. अपर में हमने देखा था कि nasal orifice में यहाँ पे कि ये lateral nasal prominences हैं, ये alley of the nose बनाती हैं, ये nasal cavity डेवलप हो रही है. इनसाइड जो nasal cavity बनेगी तो फ्रंट सेंटर में तो आ गया क्या वो फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस. अब हमने देखना ये है, जो अंडरस्टैंड करना है वो हमने ये करना है कि नेजल कैविटी किस तरह पहले डेवलप करते हैं, फिर किस तरह कम्युनिकेट करती है माउथ कैविटी के साथ, और फिर किस तरह फाइनली सेपरेट हो जाती है माउथ कैविटी से. ठीक है ना. अब पहली बात यह है कि एक्सटेंशन ऑफ द नेजल पिट्स जो हमने पहले देख चुके हैं. फिर इनिशियली ओपन कम्युनिकेशन विद द स्टोमोडियम यानी ओरल कैविटी के साथ. फिर क्या होता है कि प्राइमेटिव यानी प्राइमरी पैलेट बनता है दैट सेपरेट्स पार्टीशन बिटवीन द नेजल कैविटीज एंड द ओरल कैविटी. फिर जब नेजल पिट्स फॉर्म करती हैं, नेजल सैक्स बनती हैं, वो एक्सपैंड करेंगी डॉर्सोकॉर्डली यानी पोस्टीरियरली एंड डाउनवर्ड्स. फिर वहां पे एक बर्कोनेजल मेम्ब्रेन होगी जो कि सेपरेट की, दैट विल परफोरेट एंड विल डेवलप द कम्युनिकेशन. अगर हम अब सीक्वेंस में चले तो सीक्वेंस में मैं आपको फिर ये देखा, मुझे बार बार यही काम में लगा रहूंगा. तो ये डायग्राम आपके लैंगमैन में भी दी हुई है कि आप देख सकते हैं. लैंगमैन में ये डायग्राम है. Here you see this is the side of the nasal pit. यहाँ पे medial nasal prominence और lateral से क्या बनेगा, वो alley of the nose. Here you see nasal pit deepened हुई, deepened से उसने nasal sac बना दी. ये वो oronasal membrane है which is separating the nasal pit, nasal sacs from the oral cavity. अब जब ये जो medial nasal prominence जो उसके साथ फ्यूज करती है फ्रंटोनेजल प्रोसेस के साथ, तो वो इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट जो बनता है वहां से बना ये प्राइमरी पैलेट. बट एट दिस स्टेज यू कैन सी द ओरोनेजल मेम्ब्रेन, इट इज सेपरेटिंग. ये एक्टोडर्म से सारा डेवलप हो रहा है. एंड एट द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी दीज ectodermal cells they change and form the olfactory receptors. फिर वहां से olfactory fibers निकले which goes into the olfactory bulb जो कि आपके फिर CNS के साथ कनेक्टेड है. अब ये यहाँ पे अगर देखें, जब ये ओरोनेजल मेम्ब्रेन परफोरेट हुई, there is a communication between the nasal cavity and the oral cavity. यहाँ पे नीचे जो हम देख चुके हैं कि वो फ्रेंजियल आर्चिस के दरमियान से फिर ये डेवलपमेंट ऑफ टंग अपनी जगह हो रही है. सारे प्रोसेस एक ही वक्त में हो रहे हैं. अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी ये पोस्ट्रोकॉर्डल पार्ट ऑफ द माउथ कैविटी एंड नेजल कैविटी, वो सेपरेट होता है फिर डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी पैलेट. जिस तरह इसका आप कलर देख रहे हैं, तो ये सेगमेंट जो है सेकेंडरी पैलेट, इट डेवलप्स फ्रॉम द मैक्सिलरी प्रोसेस. अब ये हुआ कि ये भी मैक्सिला का पार्ट है, बट दिस इज फॉर्म बाय दी, देखें ना, अपर लिप का फिल्ट्रम पार्ट, यहाँ पे इंसाइजर्स और ये प्राइमरी पैलेट, ये बन गया किससे, फिर इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट से. अब यहाँ पे इस स्टेज पे आके इट्स कंप्लीटली सेपरेट नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी. Posteriorly, postrocaudally, you can see from the posterior nasal conies, it is communicating with the pharynx, nasopharynx. इस स्टेज पे आके अब हम आगे जरा चलते हैं. तो ये हम देखते हैं कि 6th वीक में ये नेजल पिट जो है वो डीपन हुई, नेजल सैक्स बनी. अब ये कि एक ये वीक आ गया, 6th वीक में नेजल सैक्स बनी, फिर नेजल सैक्स डॉर्सली ग्रो की, ओरोनेजल मेम्ब्रेन से सेपरेट हुई जो कि रप्चर हो गई. फिर जो है कि ये प्रिमिटिव कोनी
यानी पीछे जो डेवलप हो रहे थे, कम्युनिकेशन बिटवीन द नोज एंड द ओरल कैविटी, प्रिमिटिव कोने। फिर ये है कि उसके ये पैलेट आया, लैटरली लेटर कोनी लाइज बिटवीन नेजल कैविटी एंड द फेरिक्स। जबकि पूरा पैलेट डेवलप हो जाता है, हार्ड पैलेट पूरा डेवलप कर देता है, यानी प्रिमिटिव एंड सेकेंडरी पैलेट दे फॉर्म, तो फिर वो पूरी नेजल कैविटी सेपरेट हो जाती है। लेटरल वॉल में फिर क्या हुआ, 3 शेल्फ लाइफ प्रोजेक्शंस होगी, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कोने कॉन की। तो बोन्स ये डेवलप होती है, जो जिसमें कि ये इंफीरियर कॉन का जो है इट्स अ सेपरेट बोन, बाकी दोनों मैक्सिला से ही आएंगे। अब यहाँ पे डेज के हिसाब से आ गए, 28th डे, ठीक है जी, यानी 4th वीक शुरू हो रहा है। 4th वीक में फेस बनना शुरू हुआ ना, तो फेस में ये पहले लेटरली, ये देखें ये नेजल पिट्स बनी, इसके लेटरली फिर आई की लेंस ब्लैक कोड बनेगा। क्या हुआ, नेजल ब्लैक कोड बना, ठीक है जी। mesenchyme derived from the mesoderm, derived from the surface ectoderm nasal placoid। ये जो mesenchyme है ये किससे, mesoderm से। ये पिट, अब वो प्लेकोड दैट गोज इनटू द पिट, प्लेकोड में फिर डिप्रेशन हुई तो वो पिट में चेंज हो गई। अब ये पिट जो डीपन होती गई, तो यहाँ पे देखें कि ये नेजल नॉस्ट्रिल्स जो बाहर थे, जो लेटरल नेजल प्रोमिनेंसेस थी, उससे ये डीपन होके यहाँ पे क्या बन गई, एक सैक, नेजल सैक बन। ये 28th डे में हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, कि पहले क्या बना, एक प्लेकोड, फिर बना नेजल पिट, पिट डीपन हुई तो उसके लेटरल नेजल प्रोमिनेंसेस नेजल एला बन गया, और जो इसके दरमियान था, बिटवीन द लेटरल एंड मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस देयर इज द सैक, नेजल सैक। फिर क्या हुआ 5th वीक में, 6th वीक में, 5th वीक में क्या हुआ, ये वो ओरोनेजल मेम्ब्रेन है जो कि ये सेपरेट कर रही है नेजल कैविटी को फ्रॉम द ओरल कैविटी। नेजल सैक से फिर क्या हो गई, नेजल कैविटी, ठीक है ना जी। 6th वीक में ये ओरोनेजल मेम्ब्रेन इट बिगिंस रप्चरिंग, ठीक हो गया। अब ये एक्टोडर्म से लाइन कर रहा है, जो मेसेनकाइम है वो एंडोडर्म से आएगी, बट नॉट दी, ये सारी इसकी एपिथेलियम किससे आ रही है, एक्टोडर्म से, ठीक है, ये याद रखने की बात। तो यहाँ पे ये ओरोनेजल मेम्ब्रेन रप्चर होना शुरू हुई 6th वीक। 7th में क्या हुआ कि वो रप्चर हो गई, जो एक्टोडर्मल सेल थे एट द रूफ दे स्टार्ट डेवलपिंग इनटू olfactory epithelium which is connected by olfactory nerve fiber to the olfactory bulb। वहां से फिर olfactory जो नर्व है that will go into the temporal lobe, वहां से आगे सारा आप CNS की डेवलपमेंट में तब आप पढ़ेंगे। फिर ये रप्चर होके फिर ये प्रिमिटिव नेजल कोनी जो थे पोस्टीरियरली दे आर कनेक्टिंग विद द ओरल कैविटी, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी पैलेट बना है विच इज फ्रॉम द इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। ये 7th वीक में हो रहा है। फिर जनाब फर्दर डेवलपमेंट में क्या हुआ कि प्राइमरी पैलेट के साथ सेकेंडरी पैलेट डेवलप हुआ, और जिसने फिर कंप्लीटली सेपरेट कर दिया ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से। और पोस्टीरियरली यहाँ पे जो कोनी, डेफिनेट कोनी थे, they are connected with the pharynx। भाईजान आप लोग सुन रहे हो ना, चल अब स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। 12th वीक में ये हो रहा है बड़ा आसान, मैं पीछे से एक दफा रिपीट कर देता हूँ आपको फॉर द इजीनेस, आपकी सहूलत के लिए, कि इसको सिर्फ समझ ले, वीक्स के लिहाज से जो समझेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाए। ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से पहले बना नेजल प्लेकोड, फिर बनी नेजल पिट, नेजल पिट डीपन हुई तो ये फिर बन गया नेजल सैक। लैटरली ये जो नेजल सैक बनी, जो नेजल नॉस्ट्रिल्स बन रहे हैं, वहां पे लैटरल नेजल प्रोमिनेंस, ठीक हो गया।
बात समझ में आ गई ना कि पहले ये स्टोमोडियम नजर आ रहा है, पहले प्लेकोड बना, प्लेकोड से ये देखिए इसने इस तरह सेक्शन लिया हुआ है, जो उसने बताया भी हुआ है कि सेक्शन किस तरह है। ये ट्रांसफर स्केल है, यू कैन सी द ट्रांसफर सेक्शन। अब 5th वीक में क्या हुआ, ओरल नेजल मेम्ब्रेन ने सेपरेट किया नेजल सैक फ्रॉम द ओरल कैविटी, और मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस से जो कि फ्रंटल नेजल उसके साथ फ्यूज की थी, फ्रंटल नेजल प्रोमिनेंस के साथ, वहां से बना था इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, उससे बना प्राइमरी पैलेट। ये फ्रंटल नेजल 6th वीक में रप्चर होना शुरू हो गई। ठीक है, में रप्चर होगी, और रूफ में ये जो एपिथेलियम थी एट द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, वो चेंज होगी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ओनली इन हेयर इन दिस पार्ट व्हिच इज कनेक्टेड विद द ऑल्फैक्टरी बल्ब थ्रू द फाइबर्स। फिर वो डेफिनेट ऑल्फैक्टरी नर्व बन गई। ठीक है, initially the nasal cavity is separated from the oral, is communicating with the oral cavity. The only separation is by the primary palate, which is from the intermaxillary segment. और later on 12th week में hard palate पूरा बन गया, posterior secondary palate भी बन गया, और फिर lateral wall पे आप ये देखें, ये projections, कौन की projection of the bones into the nasal cavity, superior, middle और inferior. Inferior separately develop करता है, और superior और middle जो हैं, these are from the bones of the nose. ठीक है जी। अनोमलीज क्या हो सकती हैं, या तो एट्रीजिया हो सकता है, और दूसरा है कि सेप्टम, अभी हम देखते हैं सेप्टम डेवलप किससे होता है, वो डेविएटेड होता है, ये एब्सेंट हो सकता है। 99% पीपल्स में क्या होता है कि वो, बाकी एनोमलीज जो है दे आर एसोसिएटेड विद द पैलेट डेवलपमेंट, जो कि लिप के साथ भी कनेक्ट करती हैं। आप बुक में देखेंगे बहुत सारी जो एनोमलीज हैं, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, एंड दे आर एसोसिएटेड विद द, जिसमें क्लेफ्ट पैलेट होगा तो इसका मतलब देयर विल बी कम्युनिकेशन बिटवीन द नेजल कैविटी एंड द ओरल कैविटी। वो क्योंकि पैलेट ही नहीं बना तो फिर वो कम्युनिकेशन डेवलप करेगी। बात समझ आ गई ना? वो एंड में मैंने दी हुई है, वो सेपरेट मैं आपको फिर बताऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई अब्दुल रहमान साहब? भाई अब्दुल रहमान सो गया? जी सर, आ रही है आवाज? नहीं, आवाज तो आ रही है, कुछ समझ भी आई है? जी सर, समझ आ गई है। देखो ना, जो चीजें याद रखने की है कि ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म की थिकनिंग हो रही है नेजल प्लेकोड, नेजल पिट बना यानी डिप्रेशन जब हो जाएगी, नेजल पिट कन्वर्ट होगी नेजल सैक में। ये सारी कौन सी एपिथेलियम है? एक्टोडर्म से डिराइव। इसी एक्टोडर्म से ये ओरल नेजल मेम्ब्रेन सेपरेट हो रही है, जो कि बाद में परफोरेट होके कम्युनिकेशन, ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये इसको ये है कि ये वो पार्ट है जो कि मैं अगर पिछली डायग्राम में जाऊं, इसमें भी ही है ना, मैं दिखाता हूं, से पहले ये मैं दिखाता हूं। ये देखे ना, ये तो हो गया ना मैक्सिला, तो ये जो इसके दरमियान, दो मैक्सिला के दरमियान जो सेगमेंट है, जो कि बना मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस और इससे फ्रंटोनेजल प्रोसेस से, तो ये प्रोसेस, इसको क्या नाम देंगे? इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। ठीक हो गया ना? ये दो मैक्सिला के दरमियान इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। ये जो इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट है ना, असल में इसी से प्राइमरी पैलेट बनना है, जो कि इस डायग्राम में, इस सेक्शन में आपको इस तरह नजर आ रही है। जो सेक्शन है उसमें फिर आपको इसी तरह नजर आएगा ना, क्योंकि ये कौन सा सेक्शन है? सैजिटल सेक्शन, सैजिटल सेक्शन है ना।
आपकी बॉडी को इस सही। तरह दरमियान से काटा। तो इसमें ये वाला वो प्राइमरी पैलेट का जो पार्ट है वो मीडियल नेजल प्रोमिनेंसेस यानी इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट से आएगा। जो इससे पीछे बनेगा ये सेकेंडरी सेगमेंट, सेकेंडरी पैलेट, ये मैक्सिला से बनेगा। अब इसमें ये देखें इसकी जो कलर है इस एपिथेलियम का, ये शो कर रहा है दिस इज ऑल डेवलपिंग फ्रॉम द एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म लाइनिंग एपिथेलियम इज द एक्टोडर्म। इसी से फिर ये वो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम बनी ऑल्फैक्टरी, जो कि फाइबर के साथ कनेक्ट होगी, किसके साथ, बल्ब के साथ। और इसकी ये लेटरल वॉल में ये 1 2 3 सुपीरियर मिडल इंफीरियर प्रोजेक्शंस बोन की हुई नेजल कैविटी के अंदर, जिनके नीचे फिर मियाटिसिस बनेंगे, जिसके अंदर फिर पैरानेजल साइनसेस खुलेंगे, कम्युनिकेशन होगी। तो ये सुपीरियर मिडल और ये इंफीरियर नेजल कॉन्की बने। इसमें जो इंफीरियर है वो सेपरेटली डेवलप करता है, बट ये जो होता है ना सुपीरियर और मिडल, ये जो नोज की बोन्स जो सेप्टम भी फॉर्म करते हैं, वूमर है, मैक्सिला, उसी से आते हैं। ये सेपरेट डेवलप करती है इंफीरियर कॉन्का। ठीक हो गया। अब जनाब इंटरमैक्सिलरी एरिया में से आप कह रहे हैं पहले पिट बनी, फिर वो पिट से जैक बनना है, और नहीं मतलब इंटरमैक्सिलरी एरिया से शुरू। अगर देखो ना, ये अगर इस डायग्राम को देखो ना, तो ये वाला पोर्शन है इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, ठीक है ना, ये वाला। अब आप अपने नोज के नीचे आप उंगली रख ले। जी सर। तो ये लिप का जो ये पार्ट है, ये फिल्सरम है ना, तो इसकी शेप भी डिफरेंट है, देखो ना शेप भी, कि ये 4 इंसाइजर्स आपको फील हो रहे हैं। जी सर। और अगर आप इंसाइजर के पीछे उंगली ले जाएं तो हार्ड पैलेट शुरू हो जाता है। जी ठीक है ना। अब उस जो सेगमेंट शुरू वाला है, जिसके पीछे ना एक सुराख होता है जिसको कहते हैं इंसिसिव फोसा, जिसमें से मेंटल नर्व वगैरह निकलती है, तो वहां तक ये फिर सेगमेंट बनेगा प्राइमरी पैलेट। यानी इस इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट से क्या बनना, फिल्थरम, 4 इंसाइजर ऑफ द अपर लिप, अपर जाके 4 इंसाइजर, और जो आगे वाला 1/3 पार्ट प्राइमरी पैलेट का वो बनेगा। अब बात समझ में आई। बाकी जो है वो बाकी मैक्सिला से बन रहा है। ये मैक्सिला जो है ना, बाकी जो हार्ड पैलेट का बाकी पार्ट है, इस और सर जो पैलेट का जो ये वाला पार्ट, जो एक तो हार्ड पैलेट हो गया, ये तो मतलब जो मैक्सिला से आना है, मैक्सिला से, और जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसका वो सॉफ्ट पैलेट। अब हम उसकी डेवलपमेंट, जब हम पैलेट डेवलपमेंट ऑफ पैलेट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये सॉफ्ट पैलेट कहाँ से आता है, और फिर वो उसमें मसल कहाँ से आते हैं, फिर उनकी नर्व सप्लाई कहाँ से आती है, ये हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पैलेट के साथ। यहाँ पे मैं आपका कंसेप्ट ये क्लियर कराना चाहता हूं कि नेजल कैविटी सेपरेट हो रही है माउथ कैविटी से थ्रू द हार्ड पैलेट, और इसमें ये जो सेगमेंट है इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट, इसको आपको समझ आ जाए कि ये इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट है क्या। ठीक हो गया। बाकी वो पैलेट की जो है ना सॉफ्ट पैलेट, वो हम पैलेट में डिस्कस करेंगे। क्लियर, समझ आ गया। चल, अब यह क्या हमारे जहन में आता है कि 2 नेजल कैविटीज है, बीच में क्या है, ये नेजल सेप्टम, ठीक है ना। अब ये जो सेंटर वाला प्रोसेस, ये कौन सा है, फ्रंटोनेजल प्रोसेस, और यही नीचे आ रहा है, और नीचे आके ये वाला सेगमेंट जो है, इससे ये फ्यूज हो रहा है, जो प्राइमरी पैलेट बन रहा था, तो वहां पे ये फ्यूज हो रहा है। तो इट मींस कि ये जो बोन्स हैं, ये फ्रंटोनेजल सेप्टम की, वो फ्रंटोनेजल प्रोसेस से आती हैं। ठीक हो गया, सेप्टम की। अब हम देखें तो यहाँ पे ये वो सेप्टम डेवलप हो रहा है, ये नेजल सेप्टम डेवलप हो रहा है, और ये नीचे ये देखे ना पैलेटाइन शेल्फ मैक्सिला से आ रहा है, जो कि आगे आके मिलेगा तो पैलेट हम पढ़ेंगे आगे। तो नेजल सेप्टम में फाइनल शेप ये बनती है कि इसमें एक सेंट्रल बोन होती है जिसको कहते हैं, ये वाली बोन एथमाइड बोन।
से आ रहे हैं एथमाइड बोन से, ठीक है ना। और ये जो इंफीरियर कॉन्का है ये देखिए डार्क है जरा, तो ये सेपरेट बोन डेवलप होती है मैक्सिलरी प्रोसेस से, तो वो बनाती है ये कौन सा, इंफीरियर कॉन्का। तो ये नेजल सेप्टम जो है जिसमें फिर सेंट्रली एथमाइड बोन बनी, तो ये डाउन की, तो फिर ये नीचे से एक और बोन आ रही है, ये ब्लू वूमर। तो वूमर और ये एथमाइड बोन इन्होंने बनाया नेजल सेप्टम। और जो एथमाइड है उससे फिर ये प्रोजेक्शन लेटरल वॉल में जो आ रही है प्रोजेक्शन, स्पेशली द सुपीरियर एंड मिडल कॉन की, वो भी एथमाइड बोन से आ रही है। फाइनल शेप जो बनेगी वो ये बनेगी, ऊपर से एथमाइड बोन की परपेंडिकुलर प्लेट आ रही है, इधर से आ रही है वूमर, और आगे जो है क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज है। ये आप अपने नाक को भी फील करें तो आपको फील होगी। तो ये नेजल सेप्टम इस तरह बनता है, किससे, फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस, फ्रंटोनेजल प्रोसेस जो डाउनवर्ड आता है उससे। ठीक हो गया, तो ये होगी नेजल सेप्टम की डेवलपमेंट। अब हमने अगले में डिस्कस करना है पैरानेजल साइनसिस, और फिर उसके बाद एंड में मैं डिस्कस करूंगा ये भाई, ये देख लेना, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट के ऊपर एमसीक्यू भी आता है कभी कभी, और कभी कभी वो पूछ भी लेता है डिफाइन इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। तो ये वो देखें, ये दो मैक्सिलरी प्रोसेस है, दो मैक्सिला के दरमियान ये वाला प्रोसेस है इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। इससे ये देखें, ये वो लिप का पार्ट जो कि जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रम, ये 4 इंसाइसर, और ये प्राइमरी पैलेट, ये किससे बन रहा है, इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट से। और यहां पे ये इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है किसको, सेकेंडरी पैलेट को, वहां पे ये यहाँ पे नहीं, सॉफ्ट पैलेट पीछे इंसिसिव फोरामिना, यहाँ पे इंसिसिव फोरामिना होगा, इंसिसिव फोरामिना ये ज्वाइन कर रहा है, हाँ यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है ना, इससे फिर वो नर्व निकलती है। तो ये आप ये इसकी स्क्रीनशॉट हैं, हाँ उसकी ब्रांच आगे वो हम देखेंगे, वो उसमें आगे जब हम चलेंगे तो उसमें हमें सारा कुछ पता चलेगा। बेसिकली इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट का हो गया। अब बाकी हमने अगले लेक्चर में फिर पैरानेजल ये पैलेट और पैरानेजल साइनस, और एंड में आके फिर हमने ये क्लेफ्ट्स डिस्कस करने हैं सारे, जो कि कंबाइंड होते हैं अक्सर लिप के और इसके।